सीधे आपको इस वक्त लिए चलते हैं कजान, रशिया, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में हिस्सा ले रहे हैं। В Казань на саммит БРИКС. Сегодня мы вместе примем участие в церемонии открытия саммита. Затем предстоит общение лидеров за ужином. И таким образом мы начнем уже нашу работу. В Казани мы должны принять целый ряд важных решений, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности объединения и укрепление. В Казань на саммит БРИКС. Сегодня мы вместе примем участие в церемонии открытия саммита. Затем предстоит общение лидеров за ужином. И таким образом мы начнем уже нашу работу. В Казани мы должны принять целый ряд важных решений, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности объединения и укрепления. В Казань на саммит БРИКС. Сегодня мы вместе примем участие в церемонии открытия саммита. Затем предстоит общение лидеров за ужином. जो वोल्गा नदी के किनारे पर स्थित है। मुझे याद है कि हमारे जुलाई की मुलाकात की याद है जब हमारे बहुत अच्छे चर्चा हुई बहुत विषयों पर। इसके बीच हम टेलीफोन पर कई बार हमने बात की। कजान आने का आमंत्रण स्वीकार करने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। तो आज हम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सेरेमनी में भाग लेंगे और उसके बाद डिनर के समय हम भी बात करेंगे दूसरे नेताओं के साथ। आज आने वाले ब्रिक्स के दौरान समिट के दौरान हमें कई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय पर पूरा करना चाहिए। तो एक बार फिर कजान में आपका स्वागत है। В Казани мы должны принять целый ряд решений по совершенствованию деятельности объединения. ब्रिक्स की कार्रवाई को सुधारने के लिए हमको कई अहम डिसीजन लेना पड़ेगा। И очень ценим наше взаимодействие на этом направлении, имея в виду, что наши государства стояли у истоков создания объединения. हम रूस और भारत के बीच जो सहयोग चल रहा है हम वो बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। खासतौर पर ये बात भी आगे चलता है। И очередное заседание межправкомиссии намечено на 12 ноября в Нью-Дели. और 12 दिसंबर को नई दिल्ली में अंतर सरकारी आयोग की अगली बैठक होने वाली है। Последовательно развиваются крупные проекты. हमारी बड़ी परियोजनाएं लगातार विकसित हो रहे हैं। И мы приветствуем ваше решение открыть в Казани Генеральное консульство Индии. और जो आपने कजान में भारत का कौंसल जनरल खोलने का निर्णय लिया हम इसका स्वागत करते हैं। Расширение дипломатического присутствия Индии в России будет способствовать дальнейшему развитию двухсторонних отношений. भारत के कूटनीतिक उपस्थिति से हमारे सहयोग को फायदा मिलेगा। Уважаемый господин премьер-министр, мы очень рады видеть и вас, и всю вашу представительную команду в России. माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपको और आपकी प्रतिनिधि मंडल रूस में देखने से हमको बड़ी खुशी है। एक्सेलेंसी, मैं आपकी मित्रता, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। Ваше превосходительство, в первую очередь позвольте от всей души поблагодарить вас за вашу дружбу, за теплое и радушное гостеприимство. Отрадно, что мне посчастливилось, что я приехал в Казань, в такой прекрасный город, для того, чтобы участвовать в саммите БРИКС. Индия имеет глубокие исторические связи с этим городом. И после того, как откроется генконсульство Индии, в этом городе наши отношения еще крепнут. एक्सेलेंसी, पिछले 3 महीनों में
मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। जुलाई में मॉस्को में हुई हमारी एनुअल समिट से हर क्षेत्र में हमारे सहयोग को बल मिला है। Ваше превосходительство, это мой второй визит в Россию за последние 3 месяца, и это свидетельствует о тесной координации и крепкой дружбе между нашими странами. В июле в Москве, как вы правильно упомянули, мы провели двусторонний саммит, и благодаря нашим дискуссиям наше сотрудничество во всех областях укрепилось. एक्सेलेंसी, पिछले 1 वर्ष में ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। 15 वर्षों में ब्रिक्स ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और अब विश्व के अनेक देश इससे जुड़ना चाहते हैं। कल मैं ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए उत्सुक हूं। Ваше превосходительство, вы успешно руководите объединением БРИКС с начала года. За это я хотел бы вас поздравить. За последние 15 лет своего существования наше объединение БРИКС создало для себя особую личность, и сегодня многие страны мира хотят присоединиться к нашему объединению. Я с нетерпением жду наших дискуссий в рамках БРИКС завтра. एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, आज इन सभी विषयों पर विचार साझा करने का एक और महत्वपूर्ण अवसर है। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। Ваше превосходительство, по поводу продолжающегося конфликта между Россией и Украиной мы регулярно находимся в контакте. Как я сказал и раньше, мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами, и мы полностью поддерживаем скорейшее установление мира и стабильности. Во всех наших усилиях мы даем приоритетное значение человечеству, и мы готовы оказать любое возможное содействие и в будущем. Ваше превосходительство, сегодня у нас будет возможность поговорить по всем этим вопросам. Еще раз хотел бы вас поблагодарить. Спасибо. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो ब्रिक्स समिट का 16वां एडिशन है, उसके मेज़बान हैं, उनसे बातचीत करते हुए उनका स्वागत इस वक्त रशिया में हो रहा है, कजान के अंदर 16वां ब्रिक्स समिट, जिसकी इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 महीने में दूसरी बार रूस पहुंचे हैं यहां पर ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के जाने से पहले एक महत्वपूर्ण घटना ब्रिक्स को लेकर भी अगर देखें तो उसके परिप्रेक्ष्य में भी हुई है। भारत और चीन के बीच में जो पिछले 2020 मई 2020 के बाद से लगातार तनाव बना हुआ था, उसको कम करने की कोशिश अब मई 2020 से पहले की जो स्थिति थी, जहां पर भारत और चीन के जो सैनिक हैं वो पेट्रोलिंग कर पाते थे, उस यथास्थिति पर लौटने की बात कही गई है। और इसी परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचे हैं तो उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भी बातचीत हो सकती है। दोनों देशों के बीच में सीमा को लेकर जो लंबा विवाद रहा है, उसमें जो कल की घटना है उसे एक बड़ी कदम के तौर पर देखा जा रहा है। 2020 से लगातार गलवान में जो संघर्ष हुआ, उसके बाद से लगातार भारत और चीन के बीच में संबंध खराब रहे हैं और उम्मीद की जा रही है ब्रिक्स के 16वें जो ये समिट है, वहाँ पर चाइना और भारत के बीच में बातचीत होगी, जिससे कि आगे की एक सकारात्मक पहल करने की रास्ता साफ होगा। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो रशिया के राष्ट्रपति हैं और मेज़बान हैं ब्रिक्स समिट के, उनसे बातचीत करते हुए।
महाराष्ट्र चुनाव में एक महीने से कम का वक्त बचा है और अभी तक दोनों तरफ यानी कि सत्ता दल जो है महायुति और जो ऑपोजिशन है, जो वहां पर विपक्ष है, उसका महाविकास अघाड़ी में अपने जो सीट शेयरिंग एग्रीमेंट है पूरी तरीके से अभी तक नहीं हो पाया है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी अब तक सीट शेयरिंग का समझौता नहीं कर सका है। आज फिर सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन के शामिल तीनों दलों ने बातचीत की। इस बैठक में महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले मौजूद नहीं रहेंगे और कांग्रेस की ओर से बाला साहब थोराट अपनी बात रखेंगे। इस मीटिंग के बाद सीट शेयरिंग समझौते का ऐलान किया जा सकता है। इस बैठक से पहले बाला साहब थोराट ने शरद पवार के घर जाकर उनसे मुलाकात की और इसके बाद उद्धव ठाकरे से भी मिलने पहुंचे। शरद पवार के साथ बैठक के बाद थोराट ने कहा कि गठबंधन में कोई फूट नहीं है, कुछ सीटों को लेकर विवाद है जो जल्द खत्म हो जाएगा। कब आप अनाउंस कब करेंगे? आज मीटिंग्स हो रहा है लेकिन बहुत सारे डिस्प्यूट्स है शायद आपके और सेना के बीच। देखो, महायुति में भी इससे ज़्यादा डिस्प्यूट है। आप उनके बंगलों पे जाइए, कितना लोगों का हमला चल रहा है नेताओं के, बीजेपी के और एकनाथ शिंदे के। तो ये सीट शेयरिंग में सब तरफ ये डिस्प्यूट रहने वाला है। आजकल में हमारे महाविकास अघाड़ी में ख़त्म होगा ऐसा। आज मैंने बाला साहब थोराट जी को उद्धव ठाकरे जी से और शरद पवार जी से मिलने भेजे थे। अभी हमारा मीटिंग है, उसमें क्या हुआ मीटिंग में, और 1 बजे से और महाविकास अघाड़ी का मीटिंग है। उसके बाद बहुत सारा जो है डिस्प्यूट वो ख़त्म होगा ऐसा हमें उम्मीद है। सर, विदर्भ सीट्स के ऊपर है ज़्यादातर डिस्प्यूट। ऐसा कह रहे हैं कि सेना इज़ नॉट रेडी टू कंसीड दो सीट्स, लेकिन उधर आपके स्ट्रेंथ है, कांग्रेस के स्ट्रेंथ है, तो उसके बारे में बताइए। कल राउत सर ने कहा कि हमको भी कुछ सीट चाहिए विदर्भ में और कांग्रेस को भी कुछ सीट चाहिए, कांग्रेस लीडर्स कह रहे हैं। देखो, हमारी एकदम क्लियर यह है कि हम लोगों ने 96 सीट पे हम लोगों ने स्क्रूटिनी कर ली है और 96 का अभी कल CSC में भी हमारा प्रस्ताव आ गया है। तो जो मेरिट की जगह है वो कांग्रेस लेंगी। आखिरी महाराष्ट्र बचाना हमारा दायित्व बनता है और महाविकास अघाड़ी के हमारे सभी साथी दल वो हमारे साथ रहेंगे। जहाँ जहाँ जिस दल का मजबूती है वहाँ वो दलों को सीट शेयरिंग मिलना चाहिए। ये भूमिका कांग्रेस पार्टी। आपको लगता है अनरीजनेबल है कुछ आपके अलायंस पार्टनर्स के डिमांड्स विदर्भ या मुंबई के ऊपर? है, आखिरी कार्यकर्ताओं का प्रेशर सबके ऊपर रहता है और कार्यकर्ताओं पे प्रेशर जब रहता है तो लीडर लोगों को कुछ निर्णय लेना पड़ता है। लेकिन अब महाराष्ट्र बचाना ये सबसे बड़ा महत्व का है और हमें लगता है कि अब प्रश्न सवाल होगा। तो फॉर्मूला क्या होगा और कब डिसाइड होगा? फॉर्मूला क्या होगा? कांग्रेस एनसीपी सेना का फॉर्मूला क्या? 2 दिन में आपको सब पिक्चर क्लियर होगा। लेकिन फिर भी आप कितने सीट, 125, 130? हम 288 जगह महाविकास अघाड़ी लड़ेंगे। हाँ, और फिर कब डिसाइड होगा? अनाउंसमेंट कब होगा? आज होगा, कल होगा? कल या परसों होगा। मेरी सहयोगी सुजाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं इस पूरे मामले को लेकर। सुजाता, जैसे जैसे अब क्योंकि 1 महीने से कम का वक्त रह गया है और जल्द से जल्द जो तारीख है कैंडिडेचर की वो भी खत्म होने जा रही है, तो किस तरीके से आज जो फॉर्मूला है वो तय हो रहा है? किन सीटों को लेकर, कितनी सीटों को लेकर अभी भी माथापच्ची जारी है? बिल्कुल, और देखिए जो नामांकन दर्ज करने की तारीख है वो 29 अक्टूबर बताई जा रही है और वो आखिरी तारीख से पहले सभी उम्मीदवारों को अपना नामांकन दर्ज करना है, जिसको लेकर अब एक और महाविकास अघाड़ी में जो मतभेद हो रहे थे सीटों को लेकर वो अब कहीं ना कहीं सुलझता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि सुबह से बाला साहेब थोराट जिनकी नियुक्ति की गई थी महाराष्ट्र में आकर खुद वो जो है तमाम पार्टी के नेताओं से, जिसमें महाविकास अघाड़ी के उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मिलकर उन्हें इस पूरे मसले को सुलझाने की जिम्मेदारी दी गई थी। और बाला साहेब थोराट सुबह से एक और शरद पवार के निवास स्थान सिल्वर ओक पर गए, जहां पर उन्होंने शरद पवार से मुलाकात की और इस पूरे सीटों का बंटवारा किस प्रकार हो इसको लेकर बातचीत की, जिसके बाद वो सीधे मातोश्री जाते हैं, उद्धव ठाकरे से मुलाकात करते हैं। ये बैठक तकरीबन 2.5 घंटे चलती है और 2.5 घंटे के बाद जब बाला साहेब थोराट बाहर आकर मीडिया से बात करते हैं तो उसमें बताते हैं कि सबको गाड़ी में
एकदम नॉर्मल है और एक साथ महाविकास आघाड़ी चुनाव लड़ेगी। हालांकि जो शुरुआत में सूत्रों से जानकारी मिल रही थी उसमें सीट का जो बंटवारा है उसमें कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिल सकती है उनके लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के बाद से, और वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना को कहीं ना कहीं कुछ सीटों पर उनको अपने हाथ से जो है जाने देना पड़ सकता है, जिसको लेकर ये पूरा मामला अटका हुआ है। लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि जो प्रमुख मतभेद है सीटों के बंटवारे को लेकर वो विदर्भ की सीटों पर कहीं ना कहीं अटक रही है, जिसको लेकर अब बाला साहेब थोराट ने आज शरद पवार से भी मुलाकात की और जिसके बाद उन्होंने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की, और अब कुछ ही समय में जो है बाला साहेब थोराट, उद्धव ठाकरे और तमाम जो महाविकास आघाड़ी के बड़े नेता हैं वो ग्रैंड हयात पर पहुंचने वाले हैं, जिसके बाहर मैं मौजूद हूं। और ग्रैंड हयात में ये एक चर्चा चलने वाली है, एक बैठक होने वाली है तमाम महाविकास आघाड़ी के नेताओं के बीच, जिसमें संजय राउत और अनिल देसाई जो है पहले से इस होटल में मौजूद हैं। धीरे धीरे तमाम यहाँ पर जो बड़े नेता है वो पहुँचेंगे और ऐसी जानकारी है कि आज में ही ये पूरा सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो जाए ताकि महाविकास आघाड़ी को अपने प्रचार प्रसार के लिए, नामांकन भरने के लिए जो है समय मिल सके। जी श्वेता, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी सुनील भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास भी चलेंगे, पर उससे पहले आपको बता दें कि किस तरीके से महाराष्ट्र में और गतिविधियां जो हैं चुनाव से पहले अब चल रही हैं। राज ठाकरे की जो पार्टी है MNS, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उसने भी 9 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पहले बताया जा रहा था कि राज ठाकरे की जो पार्टी है वो जो महाविकास जो महायुति है, यानी कि रूलिंग अलायंस है, बीजेपी के साथ समर्थन वाली जो पार्टी है, उसके साथ अपने कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट कर सकती है। लेकिन राज ठाकरे की पार्टी अलग से अपने 9 लोगों का इन्होंने नाम घोषित किया है। इसमें राज ठाकरे के खुद के पुत्र का नाम नहीं। वहीं महाराष्ट्र में चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। मुंबई के अंधेरी पूर्व वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और बांद्रा इलाके में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं। खास बात यह है कि होर्डिंग में योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ स्लोगन लिखा हुआ है कि बटेंगे तो कटेंगे। इस पोस्टर को साथ हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र के चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ की एंट्री दिखाई पड़ रही है। यानी कि कुल मिलाकर एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की जो इमेज है, हिंदुत्व वाली इमेज को भुनाने की कोशिश की जा रही है। मेरे सहयोगी सुनील इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, एक तरफ सीटों को लेकर माथापच्ची जारी है, दूसरी तरफ बड़ा क्लियर होता जा रहा है कि कौन कौन स्टार कैंपेनर्स कहां कहां पहुंचकर अपनी पार्टी को सहयोग करने में मदद करेंगे। योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे प्रमुख। बिल्कुल, देखिए, चुनाव महाराष्ट्र में होना है, माथापच्ची अभी सीटों को लेकर हो रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की यहाँ पे ज़रूरत है, ये कहीं ना कहीं आभास देने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से हिंदुत्व वोट को कंसोलिडेट करने की बात होती है, ठीक वही कोशिश यहाँ पर की गई है। और वो भले ही बैनर जो है एक बीजेपी के छोटे कार्यकर्ता ने लगाया है, लेकिन एक संकेत दे रहा है कि जो महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है वो किस दिशा में जाएगा, ये साफ वो पोस्टर बता रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। वही स्थिति यहाँ पर हम देख सकते हैं कि महाविकास आघाड़ी का हिसाब है कि तीनों ही जो दल हैं, एनसीपी, शरद पवार, कांग्रेस है और शिवसेना यूबीटी, ये अपना अहम लेकर कहीं ना कहीं फंसे हुए, खास करके कांग्रेस और यूबीटी में। लेकिन ये भी जानते हैं कि अहम को बगल रखना होगा, तभी जाकर ये महायुति से टक्कर ले पाएंगे और जिस तरह से लोकसभा में प्रदर्शन किया वैसा प्रदर्शन कर पाएंगे। लिहाजा गम खाकर भी अभी तक साथ बने हुए हैं और आगे भी साथ बने रहेंगे। जैसा कि आज संकेत मिला है कि नाना पटोले जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हें बगल में रख दिया गया और कहा गया कि अब बाला साहेब थोराट जो हैं वो बात करेंगे महाविकास आघाड़ी की, तो वो मीटिंग यहाँ होने जा रही है। और आज उन्होंने शरद पवार से मिलकर, बाद में उद्धव ठाकरे से मिलकर लगभग 2-2, 3-3 घंटे की मीटिंग करके अपनी बातें रखी, उनकी बातें समझी और ये तय हो गया है कि महाविकास आघाड़ी क्या सीट शेयरिंग में, यानी एक साथ चुनाव लड़ेंगे। थोड़ी देर में हमें सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी सामने आ जाएगा कि किसकी कितनी मांग रहे हैं और कौन कितना पीछे हट रहा है, कौन कितना आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसके साथ ही एक रंग और देख रहे हैं हम, सभी पार्टियों के जो क्षेत्रीय दल हैं यहाँ के, उनके जो प्रमुख, चूँकि दफ्तर यहाँ पर है, यहीं से टिकट बंटते हैं, तो मातोश्री के पास सुबह सुबह बड़ी संख्या में शिवसैनिक आ गए थे, अलग अलग क्षेत्रों से वो टिकट की डिमांड कर रहे थे। एनसीपी, अजीत पवार की जो पार्टी है, उसके कार्यालय के सामने भी भीड़ लगी हुई थी। और वाई चौहान सेंटर, जहाँ पर कि शरद पवार बैठते हैं और इस पूरे महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य माने जा रहे हैं और सबसे बेहतरीन खिलाड़ी माने जा रहे हैं, उनके यहाँ भी बहुत बड़ी संख्या में भीड़ थी। और इस बार हम देखें अंकित, तो
हमेशा जब चुनाव की घोषणा होती है, पिछले कई 2 चुनाव से हम देख रहे हैं, तो इनकमिंग हमेशा बीजेपी की तरफ होती है। लेकिन इस बार पूरी इनकमिंग जो है, यानी कि नेताओं की भागने की और जाके पार्टियों से जुड़ने की, वो शरद पवार के पास जाती हुई दिखाई पड़ रही है। तो कुछ न कुछ आभास भी मिलता नजर आ रहा है कि क्या होने वाला है। लेकिन आखिर देखिए, चुनाव है, चुनाव कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि जैसा हरियाणा का हुआ है, एग्जिट पोल भी बता रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है, लेकिन अंत में हुआ उल्टा। अंत में तो वोटर को तय करना होता है कि किसकी सरकार बन रही है, चाहे एग्जिट पोल या और कोई कुछ भी कहता रहे। ये नतीजों का इंतजार इसीलिए समझदारी से करते रहना चाहिए। एग्जिट पोल पर ज़्यादा विश्वास करने की आवश्यकता शायद नहीं है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रेक लेके वापस आने, बंद रहिए हमारे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस पहुंच गए। कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई, जहां पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि शांति से ही युद्ध का समाधान निकलेगा, और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रूस के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध हैं। मेरी सहयोगी कादम्बनी शर्मा इस वक्त कजान में है, जहां पर ब्रिक्स समिट हो रही है। सीधे चलते हैं कादम्बनी के पास। कादम्बनी, एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 महीने में दूसरी बार रूस गए हैं, और वहां पर उन्होंने एक बार फिर से राष्ट्रपति पुतिन के सामने शांति से यूक्रेन के साथ अब जो समस्या है उसको सुलझाने की वकालत की है। बिल्कुल, उन्होंने खुद भी ये बात कही कि दोबारा से आना हुआ है, और दोबारा से जो उनका आना हुआ है वो इसलिए भी ज्यादा मायने रखता है क्योंकि अभी जब पहली मुलाकात हुई थी उसके बाद वो यूएस के प्रेसिडेंट से भी मिल चुके हैं, यूक्रेन के प्रेसिडेंट से भी मिल चुके हैं, उनसे भी इस बारे में बातें आएंगी। तो यहाँ पर भी उन्होंने फिर से वही बात कही है जो लगातार वो कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण ही तरीका है, एक तरीका जिसके जरिए ये पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है ये सुलझ सकता है। तो उसकी फिर से वो भी संभव सहयोग करने के लिए तैयार है। तो ये सभी बातें भारत कह रहा है। अभी उनकी जो द्विपक्षीय वार्ता है दोनों की यहाँ पर कजान क्रेमलिन में वो शुरू हो गई है, और यहाँ पर अभी फिलहाल हमने आएगा कि आखिर क्या कुछ बात हुई, क्योंकि पीएम ने कहा कि इस बारे में भी बात होगी। हालांकि रूस भारत का रिश्ता जो है उसमें और भी कई चीजें हैं, लेकिन ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है जिससे न सिर्फ रूस और यूक्रेन बल्कि बाकी दुनिया भी प्रभावित है। बहुत बहुत शुक्रिया कादम्बनी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जबलपुर की, जहां पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बड़ा धमाका हुआ है और इससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और कम से कम 16 लोग घायल हो गए हैं। 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बम और विस्फोटक बनाए जाते हैं। जबलपुर की खमरिया में ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जहां पर यह धमाका हुआ है। संजीव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, इस वक्त क्या हालात हैं, क्या फैक्ट्री के अंदर क्या वजह बताई जा रही है और घायलों की स्थिति कैसी? अंकित, घायलों की जो स्थिति है उसमें 3 गंभीर है और 1 मिसिंग है। जो ज़्यादा गंभीर है उसके लिए अगर शाम तक उसकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो जबलपुर के सांसद और सीजीएम के बीच में जो चर्चा है उसके हिसाब से उसे एयरलिफ्ट करके दिल्ली ले जाया जाएगा। तो बाकी जो 2 गंभीर हैं उन्हें का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। बाकी जो छोटे मोटे चोट आई थी उनका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया की हॉस्पिटल में ही इलाज करके उन्हें शाम तक या कल तक घर भेज दिया जाएगा। अभी जो स्थिति है, चूँकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का एरिया बहुत सुरक्षित होता है, वहाँ किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होती है। तो फिलहाल जो भी हमें जानकारी मिलती है वो हमारे सूत्रों से मिलती है, जो कर्मचारी नेता हैं वो बताते हैं। तो अभी चारों तरफ से एरिया को सील कर दिया गया है। एक इंक्वायरी बैठा ली गई है, वो जांच करेगी कि आखिर ये विस्फोट कैसे हुआ। जो अभी जानकारी है उसके हिसाब से जो रशियन मिसाइल्स होती हैं वो जो आउटडेटेड हो जाती हैं उन्हें डिफ्यूज़ किया जाता है। उस डिफ्यूज़ल के दौरान ये विस्फोट हुआ है और इतना भारी विस्फोट था कि इससे जो फिलिंग सेक्शन 6 है उसकी पूरी छत उड़ गई और बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ। उसी बिल्डिंग के गिर जाने से एक कर्मचारी अभी तक मलबे में दबा, ऐसा बताया जा रहा है, मिसिंग है वो। और जो कर्मचारी घायल हुए थे उनका इलाज किया जा रहा है।
सभी तरफ से जो जांच इंक्वायरी बैठा ली गई है उसके लिए लोग बैठ गए हैं, चले गए हैं और अब ये जांच कर रहे हैं। शाम तक एक ऑफिशियली प्रेस नोट जारी किया जाएगा। जो सीजीएम से बात हुई थी उन्होंने इस घटना को स्वीकार करते हुए ये ज़रूर बताया है कि जो इंजर्ड है उनके लिए पूरा इलाज कराया जाएगा, किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। पूरा विश्व के सामने आज क्लाइमेट चेंज एक बड़ी चुनौती के तौर पर खड़ा है। क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए भविष्य में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। इस पर हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने अदानी समूह के ग्लोबल रिलेशन अध्यक्ष शिखर प्रियदर्शी और क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट हरजीत सिंह से बातचीत की। आपको सुनाते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से डिजास्टर्स की जो इंटेंसिटी है, स्केल है, फ्रीक्वेंसी है, उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारत में भी, दुनिया के कई देशों में। और इस महत्वपूर्ण मसले पर बात करने के लिए मेरे साथ दो विशेषज्ञ हैं, शिशिर प्रियदर्शी और हरजीत सिंह। की जो COP29 COP29 मीटिंग हो रही है, वो लगता है कि आपको एक और बड़ा मौका है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए कि वो नए सिरे से इस विषय पर मंथन करें और जहाँ पर खामियां हैं, गलतियां हैं, कमिटमेंट्स लोग करते हैं। ट्रस्ट डेफिसिट की बात NDTV वर्ल्ड समिट में की गई, उस ट्रस्ट डेफिसिट को दूर करने का एक बड़ा मौका होगा COP29। देखिए, कुछ हद तक आपने अपने प्रश्न में ही उत्तर दिया है। क्या वर्ड आपने बार बार यूज़ किया? COP29। दिस इज़ द 29th टाइम दैट वी आर मीटिंग एंड देयरफॉर आई थिंक टू हैव एक्सपेक्टेशंस कि सब इसमें हम वो ट्रस्ट डेफिसिट भी दूर कर देंगे, इसमें हम उस तरह के निर्णय ले लेंगे कि एकदम उसके बाद सब कुछ हंकी डोरी हो जाएगा। नहीं होने वाला है। इंक्रीमेंटल स्टेप्स ही होंगी। आप संभवतः यही प्रश्न मुझसे या किसी और से अगले वर्ष ब्राज़ील के COP30 से पहले पूछ रहे होंगे। ये इशू नहीं, इशू ये है हैव वी अचीव्ड समथिंग एडिशनल, कुछ वैल्यू एडिशन किया है क्या COP ने? एंड उस बारे में मैं सर्टन हूँ कि सभी देश, जो आपका शुरू का प्रश्न था कि जिस तरह आपदाएं बढ़ रही हैं उसके कारणवश आज सब लोग इस बात से जागरूक हो गए हैं कि हमें कुछ ना कुछ करना है। एंड COP29 will give such an opportunity to all countries, whether developed and developing, to hold hands and take the next step, no matter how small or how big, in the fight towards climate change. NDTV वर्ल्ड समिट में ये सवाल भी उठा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दे नॉट डूइंग एनफ। उनको जितना उनकी जो जिम्मेदारी है क्लाइमेट चेंज को लेकर, उस जिम्मेदारी से बचने के लिए वो न सिर्फ अपने स्तर पे बदलाव कर रहे हैं बल्कि ना ही जो गरीब देश हैं उनकी मदद कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि COP29 जो होने वाला है उसमें भारत के लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होगा, भारत को क्या बात रखनी होगी दुनिया के सामने? देखिए, COP29 को फाइनेंस कॉप की तरह कहा जा रहा है और उसका कारण ये है कि पिछले 34 सालों में हमने जो प्रोग्रेस देखनी चाहिए, जब ये बात चल रही थी कि कन्वेंशन बनेगा और आज तक में अमीर देशों ने अपनी भागीदारी नहीं निभाई है। और अगर पैसा नहीं है और टेक्नोलॉजी नहीं है तो विकासशील देश जैसे कि इंडिया, जिनको एक बड़ा टारगेट अचीव करना है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाने के लिए, हमारे लिए वो मुमकिन नहीं है। प्लस जो डिज़ास्टर्स हो रहे हैं जिसकी बात आप कह रहे हैं, उससे हम जो जूझ रहे हैं, एक स्टडी कह रही है कि हमारी पॉवर्टी बढ़ जाएगी 2040 तक करीब 3% अगर इस तरह से डिज़ास्टर्स बढ़ते रहे तो। हमारे लिए चिंता का विषय, हम गरीबी कम करना चाह रहे हैं और ये जो डिज़ास्टर्स हैं ये गरीबी बढ़ा देंगे। तो फाइनेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है और भारत के लिए बहुत ज़रूरी होगा कि इस मुद्दे पे दबाव बनाए विकसित देशों पे कि आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है, आपको अपने एमिशंस हमसे पहले कम करने हैं, क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी भी है, फाइनेंस भी है और आपकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा है। और ये फाइनेंस पहुँचे विकासशील देशों के पास में ताकि वो ग्रीन ट्रांजिशन कर सकें और डिज़ास्टर से लड़ने की क्षमता अपनी और जुटा सकें। तो आपने जो ये महत्वपूर्ण तथ्य रखा है 2040 तक 3% तक गरीबी बढ़ सकती है अगर क्लाइमेट चेंज से बहुत बड़े स्तर पर निपटने के लिए पहल नहीं किया गया, तो ये भारत के संदर्भ में आपके? ये भारत के संदर्भ में है। ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की ये रिपोर्ट है कि जिस तरह से डिजास्टर बढ़ रहे हैं, और ये हकीकत है। आप देखिए कि जिस तरह की तबाही होती है और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता है, हमारे लोगों के लाइवलीहुड का नुकसान होता है, खेती का नुकसान होता है, सी लेवल बढ़ रहा है, तो हमारे जो कोस्टल इरोजन हो रहा है वो सबसे परमानेंट लॉस हो रहा है। और अगर इस तरह से ये लॉसेस बढ़ते रहे तो हम आगे जाने की बजाय पीछे जाएंगे अपनी इकोनॉमी में और जीडीपी ग्रोथ हमारी कम हो जाएगी। प्रियदर्शी सर, एक आखिरी सवाल आपसे कि COP29 में भारत के लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण होगा? भारत को क्या बात दुनिया के सामने रखनी होगी? भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा क्या होगा?
मेरे विचार से दो ही बिंदु हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होंगे। एक तो भारत को ये विश्व को बताना है कि हम कमिटेड हैं जीरो एमिशन के लिए, लेकिन हम उतना ही कमिटेड हैं भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए 2047 तक। एंड द टू विल हैव टू गो हैंड इन हैंड। तो हमें एक तरफ सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज के हम एम्बेसडर हैं, दूसरी तरफ हम अपने देश में अब केवल पॉवर्टी एलिवेशन की बात नहीं करते हैं, वी ऑल्सो गॉट टू इंश्योर कि हमारी पर कैपिटा इनकम उस स्तर तक बढ़े, और इन दोनों कदमों को हम साथ साथ लेंगे। ये संदेश हमें COP29 पे देना है। एनडीटी से बात करने के लिए हरजीत सर और प्रियदर्शी सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से मुकेश के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।